Welcome my students and my viewers once more. Today I want to give comprehension passages of the poem The Lake Ile of Innsbruck. In my previous video I explained you this poem word by word, and if you have not watched this video you can watch it on my YouTube channel Easy English NCERT E-Learning with Chindrapal. In my previous video, I explained you how the Irish poet W.B. Yeats, he was fed up with the type of life in London. He was very busy and he felt tired in London, and during his childhood he lived near the river, near the lake Innsfree. Now he wants to go near this river and he feels that the leaping water of this lake is beckoning him. He wants to build a small cabin there and he wants to live there for peace. He wants to go there alone. तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे W.B. यीट्स जो कि आयरलैंड के पोइट हैं, वो लंदन की लाइफ से बिल्कुल फेडअप थे। वो वहाँ के बिजी शेड्यूल से बिल्कुल तंग आ चुके थे और उनका बचपन है वो आयरलैंड के अंदर लेक इंस्प्री के पास है वो गुजरा था, और वो वहाँ पर जाकर के रहना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं, वो ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे इंस्प्री की जो लहरें हैं वो उसको कॉल करके इशारे से बुला रही हों। वो वहाँ पर एक छोटा कैबिन बनाना चाहता है और वो वहाँ पर लिनेट पक्षियों के संगीत को सुनना चाहता है। वो वहाँ पर जो बीन्स के प्लांट्स हैं उनकी 9 पंक्तियां हैं वो उगाना चाहता है। तो लेट्स डू comprehension passages of this poem. I will rise and go now and go to Innsfree, and a small cabin built there of clay and wattle made. 9 beans rows will I have there, a hive for the honey bees, and live alone in the bee loud glade. Okay, first question is who is I in the above lines. जो ऊपर लाइनें दी गई हैं उसमें I कौन है? तो here answer is I refers to the poet W.B. Yeats in these lines. Second question is name the poem from which this stanza or these lines have been taken. Answer will be like this. This stanza has been taken from the poem The Lake Ile of Innsbruck, or these lines have been taken from the poem The Lake Ile of Innsbruck. Now third question. Third question is where does the poet wish or want to go? Answer is the poet wishes or wants to go on the Lake Ile of Innsbruck. Now question number 4, what does the poet want to build there? कवि वहाँ पर क्या बनाना चाहता है? He wants to build a small cabin there. वो वहाँ पर एक छोटा रूम बना करके रहना चाहता है। Question number 5, what type of material does the poet want to make his cabin there? कवि अपने कैबिन बनाने के लिए किस प्रकार के मटेरियल को यूज करना चाहता है? आंसर इज हिज कैबिन विल बी मेड ऑफ क्ले एंड वेटल्स. उसका जो कैबिन है वो क्ले से, मिट्टी से बना हो, सैंड से बना हो, एंड वेटल्स होती हैं छोटे जो स्टिक्स वगैरह होते हैं, घास फूस होते हैं जिसकी झोपड़ियाँ वगैरह बना लेते हैं, तो उससे उसका जो कैबिन है वो बना हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question number 6, what does the poet want the honey bees do there? पोइट है वो हनी बीज को वहाँ पर क्या करते हुए देखना चाहता है? आंसर इज ही वांट्स द हनी बीज टू मेक देयर हाइज देयर. वो चाहता है कि वहाँ पर मधुमक्खियाँ आएँ और वो वहाँ पर अपना छत्ता बनाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद whom does the poet want to go to Innsfree? Answer is he wants to go there alone.
वो वहाँ पर अकेला जाना चाहता है, पोइट इंस्प्री पर अकेला जाना चाहता है। नाउ लेट्स डू स्टैंजा नंबर 2। Yes, stanza 2 is, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wilds of morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, and soon a purple glow, and everything full of linnet's wing. Okay. First question of stanza number 2 is, who is the speaker in the first line of this स्टेंजा? तो फर्स्ट लाइन जो है उसमें स्पीकर है वो कौन है? तो फर्स्ट लाइन है एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। तो हियर इन द फर्स्ट लाइन द पोएट विलियम बटलर यीट्स इज द स्पीकर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस स्टेंजा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज द पोएट विश और वांट टू गो? ये ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है फर्स्ट स्टेंजा के अंदर। तो द पोएट विशेस और वांट्स टू गो टू द लेक इले ऑफ इंस्प्री। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो टू इंस्प्री? पोएट है वो इंस्प्री क्यों जाना चाहता है? द पोएट विशेस और वांट्स टू गो द लेक इले ऑफ इंस्प्री टू हैव ए पीस ऑफ माइंड देयर। पोएट मन की शांति के लिए लेक इले ऑफ इंस्प्री पर जाना चाहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, What type of midnight is there at Innspree? इंस्प्री पर किस प्रकार की जो आधी रात है, आधी रात के समय किस प्रकार का वहाँ पर माहौल होता है? द मिडनाइट ग्लिमर्स देयर। तो वहाँ पर आधी रात के समय भी एक प्रकार से आकाश के अंदर चमक होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच बर्ड डज सिंग एट इंस्प्री? इंस्प्री पर कौन सा बर्ड है वो आता है? द पोएट वांट्स टू लिसन द सॉन्ग्स ऑफ द क्रिकेट। पोएट है वो क्रिकेट बर्ड के म्यूजिक को वहाँ पर वो सुनना चाहता है। मीन्स द क्रिकेट सिंग एट द लेक इले ऑफ इंस्प्री। इंस्प्री पर क्रिकेट है वो सिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द बर्ड्स दैट गैदर इन द इवनिंग एट द लेक इले ऑफ इंस्प्री। कौन से बर्ड्स हैं वो इले पर गैदर होते हैं? द बर्ड्स लिनेट्स गैदर इन द इवनिंग एट द लेक इले ऑफ इंस्प्री। जो लिनेट बर्ड्स हैं वो शाम के समय द लेक इले ऑफ इंस्प्री पर इकट्ठे होते हैं और वो शाम के अंदर है वो बहुत ज़्यादा संख्या में होती है और पोएट उनकी सॉन्ग को सुनना चाहता है। क्रिकेट है वो मैंने बर्ड बोल दिया ऊपर, इट इज़ नॉट ए बर्ड, इट इज़ ए टाइप ऑफ इंसेक्ट। क्रिकेट है वो एक प्रकार की इंसेक्ट होती है। तो स्टूडेंट, these are first 2 stanzas of this poem for comprehension. The next stanzas I will explain you in the next video because it will be too long to upload on YouTube. Next stanza we will do in the next video. Thank you for watching my video. Okay, student, you work hard. Okay, your exams for just half yearly exams are scheduled in the last week of September. Thank you so much for listening, for watching my videos, and have a nice day.